were doing basic concepts of chemistry and उसके अंडर yesterday we did empirical and molecular formulas. ठीक है, आज ਆਪਾਂ टॉपिक स्टार्ट करना है जो सो उसਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ because this topic will be used as it is ditto copy paste in 10+2 chapter number 2. ठीक है, so as it is आएगा बच्चे and थोड़ा जा normal topics तो हट के है. ठीक है ना, and it is very 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 important. ठीक है ना, so जरा ध्यान ਨਾਲ इस टॉपिक ਨੂੰ करना है. it will go for like ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 to 4 days ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸ टॉपिक ਤੇ, maybe ज़्यादा. ठीक है ना, 4 to 5 lectures. बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इसनू मेरे नाल बड़ी चंगी तरह कर लेना है. ठीक है ना, सो जो टॉपिक है बच्चे फॉर टुडे दैट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस. रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस बेसिकली ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾर्ट ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ है ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ. ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ. ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ हैव many methods. ठीक है, वो methods ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्कस करने हैं. चलो उस ते ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੇ हैं. ਪਹਿਲਾਂ to start off we should know कि what do you mean by a solution, है ना. so देखो दे first of all solution ਕੀ है ना. solution is a homogeneous mixture जिसका composition is same throughout. ठीक है ना, so it is a homogeneous mixture whose composition is same throughout. so एक solution की ਹੁੰਦਾ है एक homogeneous mixture जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता बच्चे. ठीक है ना, हुन आपने कीता सीगा ना कि मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. द सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. हुन सॉल्यूशन दे बच्चे दो कंपोनेंट्स हुंदे ने. ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है जेड़ा वो किवें बनदा है, दो या दो तो ज्यादा कंपोनेंट्स नु आपस विच मिक्स करके. सो सॉल्यूशन दे वी हैव टू कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट जिसको ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸੋल्यूट और दूसरा कंपोनेंट जिसको ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सॉल्वेंट. फाइन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ਹੁਣ ਬੱਚੇ सॉल्यूट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ सॉल्वेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, सॉल्यूट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन. ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ सॉल्यूट ਤੇ सॉल्वेंट ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो बिल्कुल एक लेमैन्स आंसर है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर वो की होता है कि सर सॉल्यूट सॉलिड होता है ते सॉल्वेंट लिक्विड होता है. ਉਹਦਾ मतलब की है जिवें ਆਪਾਂ नॉर्मली ਆਪਾਂ शुगर ते सॉल्ट ਨੂੰ पानी च डिसोल्व कर ਦਿੰਦੇ ਆ. सो बच्चे कहते हैं कि पानी इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सॉल्यूट. ठीक है, सो दूसरा प्रोबेबल कंपोनेंट आंसर की होता है सर ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ डिसोल्व ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋल्यूट ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਬਟ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਆਨਸਰ ਹੈ that is solute is that component which is present in lesser quantity. so ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ that is called a solute and solvent is the component which is present in ग्रेटर क्वांटिटी. ठीक है, सॉल्यूट जो कट क्वांटिटी च प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी च प्रेजेंट है. ठीक है ना, मेरी गल समझ गए ना. लाइक यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. सो मैं तुहानू एक कॉमन जे वे नाल समझाना है. लाइक यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. सो अपने पास बच्चे एक पानी का ग्लास है. So for example, you have a glass of water and you dissolve a spoon of salt in it.
ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ salt is your solute and water is your solvent, ठीक है। जो solute है वो की है नमक, ते पानी है जो solvent की है पानी, ठीक है, क्योंकि पानी ज्यादा है and नमक घट है। And similarly you have a bucket of salt, so ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ एक बकेट है सॉल्ट दी, जिस दे विच तुसी पाता कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ड्रॉप्स पानी ਦੇ ऐड करते बच्चे, ठीक है। सो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, salt is your solvent and water will be your solute, क्योंकि water is present in lesser quantity and salt is present in greater quantity. You getting a point? So this is the basic difference between solute and solvent. So solute is the component which is present in lesser quantity and solvent is the component which is present in greater quantity. Fine. Everywhere we'll use solvent as A. जिथे भी आप A use करेंगे that will stand for the solvent and we'll use B for the solute. ठीक है? Getting a point? जिन्हें भी मैं सुनो formulas दे denotions लिखवाऊंगा, whatever we'll denote, जिथे भी मैं A use करूंगा that will stand for the solvent and जिथे भी मैं B use करूंगा that will stand for the solute. कितना मैं दसदा, देखो बच्चे। सो पहला ਆਪਾਂ जिन्हें भी formulas करने हैं उन्हां ਦੀਆਂ denotions करो कि ਆਪਾਂ किहदे नाल denote करते हैं उन्हां ਨੂੰ, ठीक है ना। क्योंकि कई बार की ਹੁੰਦਾ है कि बच्चों ਨੂੰ formulas ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है बट यही नहीं पता होगा कि केड़ी चीज किसको शो कर रही है, ठीक है। सो राइट डाउन द डिनोशंस दैट वी यूज इन आवर फॉर्मूलास। सो देखो बच्चे, सो W स्टैंड्स फॉर, सो जो W होता है दैट विल स्टैंड फॉर गिवन मास, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट का जो मास सोनू गिवन है like 20 grams of water, 30 grams of water, so that will be the given mass. Fine. Capital M, that will stand for molecular mass. Clear? Small n, that stands for number of moles, which is equal to given mass upon molar mass. Fine. So small n stands for number of moles. ये तो आप कर चुके ना। So हम देखो, अगर मैं term use कर रहे हैं WA, तो that will be given mass of solvent, और अगर मैं use कर रहे हैं term WB, तो that will be given mass of solute. Clear? So अगर आप टर्म यूज कर रहे हैं WA, that will be given mass of solvent because A stands for solvent, and if I am using WB, that will be given mass of solute because B stands for solute. Similarly, अगर मैं बच्चे यूज कर रहे हैं टर्म MA, that will be molar mass of solvent, और अगर मैं यूज कर रहे हैं MB, that will be molar mass of solute. Clear? Fine बच्चे, ठीक है। Similarly, अगर मैं यूज कर रहे हैं Na, that is number of moles of solvent, किसके बराबर होंगे, WA upon Ma, and अगर मैं यूज कर रहे हैं Nb, तो it will be number of moles of solute. Clear? Done बच्चे, ठीक है। नाउ कैपिटल V will stand for volume of solution, total solution the volume, तब बट नेचुरल है कि VA stands for volume of solvent and VB stands for volume of solute, तब बट नेचुरल है जो कैपिटल V है that is equal to VA plus VB. Clear?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बचे, ठीक है, क्लियर अपने पास। एंड सिमिलरली WS स्टैंड्स फॉर मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुसी सॉल्वेंट ते सॉल्यूट दे मास नु ऐड कर दोगे यू विल गेट मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि WS इज इक्वल टू WA प्लस WB, clear? So these are the denotions that we'll use in the formulas, ठीक है। So WA stands for given mass of solvent, WB given mass of solute, WS दोनों का total given mass of solution, MA stands for molar mass of solvent and MB stands for molar mass of solute। अगर मैं WA पे WA नु MA ਨਾਲ डिवाइड कर दूंगा तो I'll get number of moles of solvent। If I divide WB by MB, then I'll get NB is equal to number of moles of solute. Capital V will stand for volume of solution. Clear? So these are the denotions that we are going to use in our formulas. Done? Now. So हम आपका किड़े-किड़े concentration terms use करांगे बच्चे, ठीक है ना? So जो अपना मेन टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सो आवर फर्स्ट वो टॉपिक जो स्टार्ट करना है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। So but natural बच्चे खुद ही बोल रहे हैं, है ना, the terms that are used to express the concentration of the solution। ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, they are called concentration terms। So they are used to express the concentration of a given solution। So they are used to express the concentration of a given solution। एक solution कितना concentrated है बच्चे, ठीक है ना, उसको ਆਪਾਂ express करते हैं by means of concentration। ਹੁਣ concentration ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, देखो बच्चे, like let it be again I have a glass of water, I add a teaspoonful of sodium chloride to it, NaCl, तो ऑफ कोर्स इसका टेस्ट की हो जाएगा, सॉल्टी, खारा टेस्ट हो जाएगा, है ना। नाउ मैं इस दे विच एक चम्मच होर ऐड करता, ठीक है, सेम अमाउंट, जो जेड़ा इसका सॉल्टी टेस्ट है दैट विल बिकम डबल, नाउ ज्यादा खारा हो जाएगा। एक होर चम्मच पाता, होर ज्यादा खारा हो जाएगा। तो मैं की कहना चाह रहे हैं कि जिवें जिवें मैं सॉल्ट ऐड करता जा रहे हैं सॉल्यूशन दे विच सॉल्ट दी कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जो मेरा सॉल्यूशन है वो होर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुंदा जा रहा है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो हुण देखो बच्चे, नो डाउट कि अगर ਆਪਾਂ अपने घर च बैठे हैं तो जे मैं पूछा सोनू कि तुसी पानी दे ग्लास दे विच कितना नमक पाया था, यू कैन ईजिली से कि 3 टीस्पूनफुल्स, है ना, कि मैं 3 चम्मच नमक पाया। बट साइंस दी लैंग्वेज आप 3 चम्मच नहीं ना बोलांगे, विल से इट कि मैं कितने ग्राम्स नमक पाया, मैं कितने मोल्स नमक पाया, ठीक है, दैट इज साइंटिफिक लैंग्वेज। तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज दी टर्म्स ही आपने करनी है कि इस पानी दे विच हुण कितना नमक है उसको आप कितने वेज नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो योर वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर, नंबर 1 जो सब तो पहली टर्म है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर 2 परसेंटेज, नंबर 2 इज बच्चे परसेंटेज। नंबर 3 ppm, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। सो ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। थर्ड इज, सो फोर्थ इज
So strength, percentage, parts per million. Next is molarity, denoted by capital M. ठीक है. Next, molality, denoted by small m. So बच्चे सिर्फ R and L का फर्क है. Molarity, molality. ठीक है. Sixth, normality, denoted by capital N. Next, formality, denoted by capital F. And the last term is eighth, mole fraction. Mole fraction, denoted by capital X. So these are your various concentration terms that are used to express the concentration of a solution. गल इक्को ही है बच्चे, different ways है. ठीक है. हुन देखो, suppose अगर मैं सोनू कमा कि इस मार्कर दी लेंथ कितनी होएगी, है ना, कि मैं सोनू इस मार्कर दी लेंथ पूछा, ता you can tell the answer in centimeters. You can say कि सर ये लगभग चलो 12 centimeters. You can say कि सर this is 4.5 inches. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ 1 ਗਿੱਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ in any ways ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, they all are right. ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਹੈ ਤਾਂ 4.5 ਇੰਚਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਹ 1 ਗਿੱਠ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 12 centimeters are wrong. All are same, they all are different ways to represent its length. ਤਾਂ similarly ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਤਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ strength ਹੋਏਗੀ, percentage ਹੋਏਗੀ, ppm ਹੋਏਗੀ, molarity, molality, normality, formality, mole fraction होएगी, of course. You getting a point? So they all are different ways to represent the concentration of solute in a solution. So we shall start off with the first one now, that is called strength. ठीक है? So now we shall start off. जो first concentration term है बच्चे अपनी, which is called strength. सो बच्चे अगर इन्ना टर्म्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ. ਮੇਨਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਨਿਕਲਣਗੇ. ਸੋ ਆਰ ਫਰਸਟ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ mass of solute in grams present in 1 liter of solution. So अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ total solution ਦਾ volume 1 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ solute ਦੇ ਕਿੰਨੇ grams present ਹੈ, that is the strength. ठीक है? Like for example 2 liters of aqueous NaOH solution has, let it be 30 grams of NaOH. ठीक है बच्चे? So अगर अपने कोल एक 2 लीटर ਦਾ aqueous NaOH solution है जिस दे विच 30 grams NaOH है, ठीक है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई बच्चे? तो स्ट्रेंथ कितनी हुई उसकी? हाँ जी देखो 2 लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 30 grams. अगर 2 लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ 30 grams है तो 1 लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 15 grams. सो अपने को स्ट्रेंथ आ गई 15 grams per liter. क्लियर आंसर? ठीक है. सो इसके यूनिट्स की होंगे बच्चे? यूनिट्स विल बी grams per liter. Units will be grams per liter. And now the formula. So formula की है बच्चे, is the strength is equal to given mass of solute upon volume of solution in liters.
given mass of solute in grams upon volume of solution in liters, जिथे आप लिखेंगे where WB is equal to given mass of solute in grams and capital V is equal to given volume of solution in liters। ठीक है, जिदा ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ क्वेश्चन सॉल्व किया है कि अपने कोल की सीगा 2 लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ग्राम्स ऑफ NaOH। सो मैं 30 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 15 grams per liter is your strength। So this is what you mean by strength of a solution, the mass of solute in grams present per liter of solution। ठीक है, for example, so देखो अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आंदा है सो देखो बच्चे लेट इट बी हुन अपन क्वेश्चन आ रहा है कि सो क्वेश्चन इज 2 liters of aqueous H2SO4 has 1.5 moles of H2SO4 full stop, calculate its स्ट्रेंथ। अपने पास बचे 2 लीटर सॉल्यूशन है जिसदे विच H2SO4 दे मोल्स कितने हैं 1.5। क्लियर, आप उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। सो देखो आप पहला मोल्स तो सो देखो ये वॉल्यूम अपने को हैगी है सॉल्यूशन दी कितनी 2 लीटर्स। ठीक है, स्ट्रेंथ में फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला की है मेरे पास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू WB अपॉन V। तो V मैंने गिवन है, WB में NB तो फाइंड आउट करूंगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 1.5। सो बच्चे लेट्स फाइंड आउट। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दिस इंप्लाइज गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स into molar mass बचे। H2SO4 का molar mass कितना होता है 98। सो मेरे पास आंसर आ गया 147 grams। सो नाउ आई विल पुट द वैल्यूज। सो 147 अपॉन 2 डन। सो मेरी स्ट्रेंथ कितनी आ गई बचे 2 7s are 14, 2 3s are 6, 73.5 grams per liter is your answer। डन। आई होप इजी। अपन वॉल्यूम गिवन सी, सॉल्यूट दे मोल्स गिवन सी, सॉल्यूट दे मोल्स तो मैं सॉल्यूट दा गिवन मास फाइंड आउट कर लिया। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स नु मैं डिवाइड करता ते मेरे को आंसर आ गया बच्चे स्ट्रेंथ। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज परसेंटेज बच्चे। So बच्चे now we shall start off with percentage। So percentage, so we all know बच्चे की जो percentage होती है ना, basically percentage is out of 100। ठीक है ना, कि 100 विचों अपना हिस्सा कितना है, the fraction we have out of 100 is the percentage, है ना, कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दा 100 विचों कितने पार्ट्स है। ठीक है ना, सो लिखो। सो परसेंटेज, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज इज इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स occupied by a component per 100 parts of the solution। So it is the number of parts occupied by a component per 100 parts of the solution। कि 100 अगर solution का total ਆਪਾਂ 100 मान लिए तो उस विचों अपना हिस्सा कितना है, एक component का हिस्सा कितना है, that is the percentage। Fine। अगर suppose
किसी भी चीज दे XYZ, मतलब किसी भी चीज दे, है ना, कोई भी XYZ, आई हैव मतलब कोई भी चीज है मेरे पास XYZ, उसके टोटल 50 पार्ट्स है, तो उसके विचों अगर सपोज 30 पार्ट्स मेरे है, तो 50 चो 30 है ना मेरे, तो मेरी परसेंटेज कितनी हुई 30/50 इंटू 100 यानी कि 60%। सिंपल है, अगर 50 चो 30 है मेरे, तो 100 चो कितने होंगे, डबल 60, ठीक है ना। सो it is the number of parts occupied by a component per 100 parts of the solution, ठीक है। अगर आप मास की गल करिए, ठीक है, टॉकिंग अबाउट मास, सो इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, लेट WA is equal to mass of solvent, WB is equal to mass of solute. This implies percentage of A, तब बच्चे A दी percentage कितनी हुई, mass of A divide by total mass into 100, fine. And similarly percentage of B is equal to mass of B upon total mass into 100, clear। बच्चे गल समझ आई कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपने इन टर्म्स ऑफ मास देखना है, तो एक कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज उसकी परसेंटेज। एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इस परसेंटेज को आप की कहने हैं, ठीक है ना, इसको इधर रिप्रेजेंट करते हैं आप W/W, ठीक है, इसको इधर लिखा जाता है मास बाय मास। मतलब मैं बात दसूंगा कि जेड़ा इदा आप इन टर्म्स ऑफ मास गल करते हैं, उस परसेंटेज को कितना लिखा जाता है कि अगर टोटल मास इज 100 तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अपना मास कितना है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड W/W, ठीक है, मास बाय मास, ठीक है, in terms of mass। Now in terms of volume, so percentage in terms of volume, इसको आप लिखते हैं बच्चे V/V, ठीक है। सो इथे आप लिखांगे लेट वॉल्यूम ऑफ solvent is equal to VA and volume of solute is equal to VB, fine। Then percentage of A, the volume of A upon total volume into 100, fine। Similarly percentage of B is equal to volume of B upon total volume into 100, fine, clear बच्चे। सो अगर आपको वॉल्यूम दिती है तो आप वॉल्यूम दी टर्म्स परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मास दिता है तो मास दी टर्म्स। वैसे भी बच्चे परसेंटेज इज आउट ऑफ 100 किसी भी चीज दी होवे, डन। नाउ सो हम देखो, सो बेसिकली ਆਪਾਂ परसेंटेज ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो मैं एग्जाम्पलीफाई करके उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। सो लिखो बच्चे कि परसेंटेज इज एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। जो परसेंटेज होंगी है उसको एक्सप्रेस करने दे अपने को 3 वेज है, ठीक है। नंबर 1 वेट बाय वेट, आप इसको वेट बाय वेट भी बोल देने हैं या मास बाय मास भी बोल देने हैं, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड मास बाय मास, मतलब टोटल मास चो टोटल 100 ग्राम मास चो थोड़ा मास कितना है, दैट इज कॉल्ड मास बाय मास। नंबर 2 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। एंड थर्ड वे इज मास बाय वॉल्यूम,
so mass by volume. ठीक है? So these are the three different ways by which we express the percentage बच्चे. ठीक है ना? उनमें एग्जांपल देके समझाते हैं. So देखो, let it be I have 20% aqueous NaOH mass by mass. ठीक है? For example, I have 20% aqueous NaOH mass by mass, 20% aqueous NaOH volume by volume, and similarly I have 20% aqueous NaOH mass by volume. Fine. So मैं तीन एग्जांपल्स ले लिए एक्सप्लेन करने लिए. ठीक है ना? 20% weight by weight, volume by volume, and weight by volume. Clear? Now, so ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? NaOH ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20 ਗ੍ਰਾਮਸ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? let total mass of solution, WS मान लिया बच्चे मैंने, WA की सी mass of solvent, WB की सी mass of solute, तो WS is mass of solution, total mass. So let total mass अगर मेरे पास 100 grams है, तो जो solute है WB that is 20 grams. Clear? Solvent automatically find out हो गया. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि बाकी की है वाटर, है ना? वाटर कितना है इसदे विच? 100 minus 20 80 grams. क्लियर आई होप. ठीक है? हुन बच्चे इस पे आ जाओ. ਇੱਥੇ सिमिलरली मैं assume करूंगा let total volume of the solution is equal to 100 ml. तो मेरे पास solute दी volume is 20 ml. तो solvent दी volume कितनी होगी? 80 ml. Clear? So this is volume by volume. कि टोटल वॉल्यूम जो मेरी वॉल्यूम कितनी है? अगर टोटल देखो बच्चे, टोटल आप जितना मर्जी एज्यूम कर सकते हैं, बट आप 100 क्यों एज्यूम किया है? क्योंकि परसेंटेज इज आउट ऑफ 100. देखो अगर 20% 20 ग्राम 100 ग्राम्स है, अगर मैंने 50 ग्राम एज्यूम कर रहा था तो 10 हो जाता. अगर मैं इसको 200 एज्यूम करूंगा तो 40 हो जाएगा. मतलब 100 जो 20 है. ठीक है ना? नाउ 20% aqueous NaOH weight by volume, बोले दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया. सो इथे let total volume is equal to 100 ml. So solution ਦੀ volume 100 ml ਹੈ. देखो weight by volume ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ solute ਦਾ mass is 20 grams. Clear बच्चे? समझ आई गल? सो देखो अगर मैं टोटल 100 ग्राम मास च अपना मास दस रहे हैं तो weight by weight. अगर मैं टोटल 100 ml वॉल्यूम च अपनी वॉल्यूम दस रहे हैं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. और अगर मैं टोटल वॉल्यूम दे विच सॉल्यूशन दी अपना मास दस रहे हैं तो दैट इज वेट बाय वॉल्यूम. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज बाय विच आई कैन एक्सप्रेस द concentration of a solution. ठीक है? सॉरी, the percentage of a solution. Clear? So three different ways by which percentage can be expressed. Clear now? ठीक है? So ਹੁਣ ਆਪਾਂ percentage ਦੇ ਨਾਲ related ਇੱਕ ਦੋ questions ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Fine? So बच्चे let it be कि our question is let it be our question is 30 grams of chloroform. So chloroform का formula बच्चे वैसे इतनी जरूरत नहीं है, but I am just mentioning, है ना? CHCl3 is dissolved in 80 grams 90 grams of carbon tetrachloride CCl4. Find the percentage of each component.
ठीक है। सो दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है आपने बच्चे। नाउ सो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, सो W, सो बच्चे दोनों विचों किहदा मास घट है 90, आप किसी ਨੂੰ भी A या B एज्यूम कर लांगे, ठीक है। सो WA is equal to 90 grams, WB is equal to 30 grams, fine। So now percentage of chloroform is equal to उसका खुद का मास अपॉन बच्चे टोटल मास into 100। सो उसका खुद का मास कितना है बच्चे 30 अपॉन 90 प्लस 30 into 100। क्लियर। सो जितना भी सॉल्व करके आ जाएगा दैट विल बी अ परसेंटेज। कितना आएगा देखो 30 अपॉन 120। सो 30 अपॉन 120 कट के कितना आ गया बच्चे 34 are 120, सो 4 आ जाएगा। सो दिस विल बी 25%। क्लियर। सो परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म मेरे पास आ गई। नाउ सो अगर मैं परसेंटेज ऑफ CCl4 फाइंड आउट करनी है तो मेरे को दोनों वेज है, या तो मैं 100 विचों 25 माइनस कर देना है, ठीक है, तो आई गेट 75%। सो 100 माइनस 25, so this is 75% because we know कि total is always 100%, ठीक है। या आप फॉर्मूला लगा लो। सो उसका खुद का मास कितना है बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड का 90 ग्राम्स, टोटल मास कितना है 90 प्लस 30 इज इक्वल सॉरी इनटू 100। सो 90 by 120 into 100, so this becomes 3 by 4, so this is 75%। क्लियर। सो यहां आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बोथ वेज आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा हुन एक चीज ध्यान नाल सुनो बच्चे, अगर आपां नूं कुछ भी मेंशनड नहीं है कि देखो हुन जिवें सपोज आपां नूं ये मेंशन ही ना होवे कि दिस इज 30% NaOH, हुन तुसीं उत्थे ये नहीं कह सकदे कि सर मैंने तो ऐ नहीं दिता उन्होंने कि वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो बच्चे ध्यान च रखना है कि अगर कुछ भी मेंशनड नहीं है तो आप वेट बाय वेट लेके चलांगे। दूसरा, अगर उन्होंने आपको नहीं मेंशनड कि सॉल्वेंट केड़ा है तो आप सॉल्वेंट वाटर लेके चलांगे। यू गेटिंग अ पॉइंट। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज वाटर। तो करके अगर मेंशनड नहीं है, देखो सपोज उत्थे सिर्फ एना मेंशनड है, सो देखो लेट इट बी कि अपने पास क्वेश्चन दे विच सिर्फ एनी चीज गिवन है कि यू आर गिवन 30% H2SO4, fine। So you are given 30% H2SO4, fine। तो हम देखो बच्चे आप एज्यूम करांगे लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। सो मैं 100 ग्राम्स क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि आप लेके चलांगे कि ये वेट बाय वेट है, ठीक है ना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि केड़ा का वेट बाय वेट, मास सॉरी वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप वेट बाय वेट लेके चलांगे। एंड WB की होया अपने को 30 ग्राम्स H2SO4, वो तो मेंशन नहीं है कि केड़ा सॉल्यूशन है। तो बच्चे जेड़ा सॉल्वेंट है दैट इज 70 ग्राम्स, क्योंकि टोटल अगर 100 है तो सॉल्यूट कितना होया 30 ग्राम्स। सो 30 ग्राम्स 100 चो माइनस करके 70 ग्राम्स आ गया। हुन अगर सानू पूछा जावे कि ये सॉल्वेंट है केड़ा, चलो वैसे इत्थे जरूरत ही नहीं है, बट सपोज हम सानू पूछा जांदा कि सॉल्वेंट दे मोल्स कितने हैं, तो मोल्स नू फाइंड आउट करन लई सानू इस दे मोलर मास नाल डिवाइड करना पਊਗਾ। तो मोलर मास बच्चे किवें आऊगा, अगर सानू पता होगा कि सॉल्वेंट केड़ा है, तो उत्थे अगर कुछ भी मेंशनड नहीं तो विल एज्यूम कि जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। डन। क्लियर। अगर अपने को सॉल्वेंट मेंशनड नहीं है तो आप सॉल्वेंट वाटर ही लेके चलांगे। डन। नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सो राइट डाउन बच्चे, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज ppm। सो पार्ट्स पर
मिलियन। ठीक है, सो जिद्दां बच्चे परसेंटेज 100 विचों हुंदी है तां पीपीएम किस चों हुंदी है? मिलियन चों। बिल्कुल सेम टिट्टो। सो जिद्दां परसेंटेज हुंदी है कि 100 चों अपना पार्ट कितना है, उदां ही पीपीएम की हुंदा है 1 मिलियन, यानी कि 10 lakhs चों अपने पार्ट्स कितने हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स occupied by a component per million. So million कितना होता है बच्चे? 10 days is 6 parts of solution. So अगर 1 मिलियन चो एक कंपोनेंट ने अगर सॉल्यूशन ਦਾ टोटल ਦਾ मास ਆਪਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, that is ਉਸ ਦਾ ppm। फाइन, ठीक है। सो बिल्कुल परसेंटेज की तरह देखो, सो उदा ही बच्चे अपना फॉर्मूला बनेगा जिदा परसेंटेज वाले बनया सी, ठीक है ना। सो वेरी इजी। सो देखो, लेट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू WA। अगर सॉल्वेंट दा मास इज WA एंड सोल्यूट द मास इज WB, फाइन। the ppm of A will be उसका खुद का मास अपॉन टोटल मास into 10 raised to 6। क्लियर, ठीक है। बस परसेंटेज आप 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना ਹੁੰਦਾ ppm ਚ 1 मिलियन ਨਾਲ। सिमिलरली ppm of B is equal to mass of B upon total mass of the solution into 1 million। क्लियर, आई होप, ठीक है। बिल्कुल इजी है। एक चीज याद रखनी है। सो देखो, ppm term is used, सो बच्चे ध्यान से रखना है ppm नो ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ यूज करते हैं। ppm term is used when the solute is present in trace amounts। सो जो अपना सोल्यूट बहुत 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 घट क्वांटिटी च प्रेजेंट होवे, then we use the term ppm। समझ आई गल? उदों ਆਪਾਂ ppm यूज करते हैं जो सोल्यूट की मात्रा बहुत घट होंदी है। क्यों? वो भी मैं हुणे हुणे तुहानूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन करदा है। देखो बच्चे, सो लेट इट बी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आंदा है एग्जाम च, so let it be बच्चे कि a question comes कि 1 kg of public water supply, PWS stands for public water supply, जो अपने घरां च पानी आंदा जिन्हों ਆਪਾਂ वाटर वर्क्स ਦਾ पानी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ, है ना। 1 kg of public water supply has 4 mg of dissolved chlorine, ठीक है। Calculate the percentage and ppm of chlorine। So calculate the percentage and ppm of chlorine। और कहते कि 1 किलो पानी अगर घर आ रहा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 mg dissolved chlorine ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लोरीन ਦੀ परसेंटेज ਤੇ ppm फाइंड आउट करो। सो देखो बच्चे, कितना सॉल्यूशन घरे आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ 1 kg। बच्चे ਹੁਣ ਇਸ 1 kg ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ क्योंकि उस 1 kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ क्लोरीन है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ठीक है ना। सो 1 kg ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लोरीन कितनी है बच्चे? 4 mg। सो मैं इस 1 kg ਨੂੰ mg ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ है। सो ये कितने mg हो गया बच्चे? 10 raised to power 6 mg। क्लियर?
सो पहला मैं परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज कितनी आई, सो क्लोरीन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, क्लियर। सो परसेंटेज आ गई बच्चे मेरे को 4 इंटू 10 रेज़ -4%, क्लियर। जिसको मैं इदा भी लिख सकता है 0.0004%, क्लियर है होप। हुन मैं पीपीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो पीपीएम ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ 6। सो आंसर कितना आ गया बच्चे 4 ppm, क्लियर। सो हम ध्यान ना देखो बच्चे, अगर सानू पूछा जाए कि आ एक्सप्रेशन लिखना इजी है कि आ इजी है, तो ऑफ कोर्स यू विल प्रेफर दिस वन। हुन सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन इथे वाइंड अप करके सानू 3 दिनों बाद पूछा कि दसो कितने ppm आए सी, यू विल इजीली रिमेंबर कि सर 4 ppm आए सी। और अगर मैं पूछा कि कितने परसेंट आए सी, तुसी जीरोस च कंफ्यूज हो जाओगे, सर पता नहीं 0.004 सी, पता नहीं 0.04 सी, पता नहीं 0.000004 सी। यू गेटिंग अ पॉइंट? मतलब आप इस चीज च कंफ्यूज हो जाएंगे। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 1 kg ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 4 mg ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ that was very less। ट्रेस अमाउंट्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਟ is present in very lesser, very minute concentrations, then we use the term ppm बच्चे, clear? ठीक है। So I think that's enough for today। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। And now we shall continue with other concentration terms in the next lecture, ठीक है। And once again I repeat कि this topic is very important। short question ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ +1 एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ concentration terms ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 2-3 questions ਪੱਕਾ ਆਣਗੇ। +2 एग्जाम ਚ ਪੱਕਾ ਆਣਗੇ, and as it is copy paste ਆਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ +2 ਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ, concentration terms ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3 ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਰੈਂਥ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਂਡ ਪੀਪੀਐਮ। ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਯੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਥਰੋ ਵਿਦ ਥੀਸ 3 concentration terms, ठीक है। So keep studying and keep revising बच्चे। Thanks a lot।